Hello and welcome to Military Mantra. In this interview, we have today Major Sidram Solankar, who has served in Indian Army for close to a decade. And in this interview, we'll try to understand his journey of joining Indian Army, life in Indian Army, and various life lessons that he has learned over his service. So thanks a lot, sir, for coming on this interview and welcome. Thanks, Akash, for the great opportunity. Sir, if you could tell us, how was your journey before joining the Indian Army and what was your motivation back then? Yeah, of course. See, I want to tell all my viewers that I'm coming from a very normal background, no sending school, nothing. I was born in Pune. I am from Solapur. I've studied in my town Solapur, Siddheshwar High School. And my father, I have a police background, so my father, my grandfather, everybody served in police force, and they have motivated me to join the army a step ahead. So it was my childhood dream to join the army, and I achieved it. So yeah, and then since school days also I was part of NCC, and after that in college I was in Pune. In Pune also in senior division I have done the 3 years of NCC, and these NCC days have really inspired me to join the Indian Army and to become a good officer. So that was my aim. Of course, it was my childhood dream, but the NCC has really वो सबसे important factor है to join the army. I was a part of Republic Day Parade 2006. Okay. So yeah. Sir, if you could also tell us your experience in the service selection board, because you told me you have been through SSB multiple times. So how did you prepare? Yeah, exactly. Yeah. So yeah. So it was a very interesting journey. Now I can say it's a very interesting journey because see, coming from a regional school, Marathi medium, so everybody, I mean, most of the youth, I can say that generally we find this problem with the communication, communication in English language. So yes, coming from Solapur to Pune, of course, even college days में भी ये problem थे हमारे, but gradually built up. We meet people and वो जो willingness था ना कि कुछ भी हो जाए यार, we wanted to join the army only. So that was very important thing कि English is not, it's just a language. वो फिर कभी आपके आगे वो barrier नहीं बनेगा. So why it was interesting, because I got recommended at the 7th attempt. Okay. So I faced almost all the centers. So I don't know whether it's you call it an achievement or not, but yes, it was a very fruitful journey, I would say, because since I got cleared my CDS in the first attempt, but it took me almost 7 attempts to clear the SSB, because SSB is a very different test procedure. Okay, I must tell you. I mean, the experience also it's very different. I would say that every youngsters of our country should attend the SSB procedures, SSB test. They should gone through that procedure, because that will change your life. That will change the different perception. Because मैं जब भी जाता था, जो भी कॉन्फ्रेंस में जो रिजल्ट्स आते थे ना, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम हमेशा एक माइंडसेट लेके जाते थे एनसीसी में, एसएसबी में, कि ब्रिगेडियर साहब का बेटा होगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, कोई एपीएस से आया है, इसने तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वो बेस्ट कैडेट था एंड समथिंग लाइक दैट, ये तो बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, सो डेफिनेटली इसका तो हो जाएगा. बट रिजल्ट्स वर कंप्लीटली डिफरेंट. मतलब these are not the criteria that they are looking for. Okay? They are particularly looking for the qualities. OL की जिसको हम बोलते हैं, everybody knows that. And उस qualities में कभी कोई ये फराटेदार अंग्रेजी बोलनी चाहिए या ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है. Okay? Because आकाश, we have to understand कि आसाम या कश्मीर के जंगलों में, in thick forest, जब heavy rainfall हो रहा है रात के 2 बजे, you are with your jawans, with your teams, and you are out of communication and you are under heavy fire when you're working in LC scenarios or counter-insurgency operations में, तो आपकी अंग्रेजी काम में नहीं आएगी. You have to understand that. तब आपका as a officer, the jawan is looking up to you कि
साहब आप कुछ सोल्यूशन दोगे, ओके, यू मेक द प्लान, यू, ओके। सो ये जो क्वालिटी है, जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, करेज, इनिशिएटिव या डिटर्मिनेशन, ये चीजें वो देखते हैं, ठीक है। So of course English आनी चाहिए, English has an importance in SSB and all the procedures, but इसका मतलब ये नहीं है कि just only they are looking for the communication skills. It can be developed. See, understand, जो courage होता है ना, वो क्वालिटी आप में ऑलरेडी होती है, ठीक है। उसको आप ट्रेनिंग एकेडमीज में डेवलप नहीं कर सकते। जब आप ओटीए, आई में, एनडीए, जो भी ट्रेनिंग एकेडमीज है मिलिट्रीज के, उसमें आपको क्या फिजिकली अगर आप वीक हो, आपको वो ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है, आपके बिहेवियर्स, मैनर्स, एटिकेट्स, उसको ट्रेन किया जाएगा। लेकिन आई कैन नॉट ट्रेन समवन टू टेक एन इनिशिएटिव, यू नो, कि और ये जॉब, ये पर्टिकुलर जॉब इंडियन आर्मी ऑफिसर का एज अ मिलिट्री लीडर, ये इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड ओएलक्यूज। तो वो डेवलप करने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, ना तो वो एक साल में डेवलप किया जा सकता है ट्रेनिंग एकेडमी। यू शुड ऑलरेडी हैव इट, ओके। सो दैट्स व्हाई एसएसबी हैज taught me a lot, and it was a very outstanding experience. It was like I grow as a human being also. मतलब if I would have not got recommended at my last attempt, I got recommended at my last attempt. Last मतलब I remember जो एज बार होता है ना, एज क्राइटेरिया होता है। So my date of birth is 31st January, and जो लास्ट अटेम्प्ट था वो सेकेंड या थर्ड जनवरी का उनका लास्ट डेट ऑफ ये था। So just because of 28 days I could attend that SSB interview. So इतना वो क्लोज अटेम्प्ट था मेरा, and I got through. Okay, so a very different experience. So any particular question you want to ask regarding Yes. SSB, you can ask. Yes, if you could speak about, because every time you go to SSB as a repeater, a very common question is, what did you do this time different? And why were you not recommended last time? So how did you actually answer that? And now when you look back, what did you actually do different? Yeah, okay. So basically, what did you do that you have not performed last previous attempt वगैरह, वो तो questions उनके set of जो questions होते हैं, you can't understand the mindset of an assessor, okay, कि वो किस frame of mind से पूछ रहा है। Basically he want to assess you. They will never put a bias of ये repeater है या fresher है, ठीक है। Basically उनके लिए वो मायने नहीं रखता। अदरवाइज कोई भी 7th attempt या even 13th attempt में भी people got recommended, वो कभी नहीं होता। Basically they wanted to टेस्ट योर क्वालिटीज, क्या आपने कोई आपका परसेप्शन चेंज किया है। बेसिकली मतलब मेरा ये आंसर था कि आई एनहांस माय परसेप्शन। इफ यू सी, एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी, ओके, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपने सीडीएस क्लियर किया है ना, या इवन एनसीसी एंट्री में भी जो आपको एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज आपको होने चाहिए, ठीक है, या इवन टीएस एंट्री में भी आपको इतने परसेंटेज होने चाहिए। सो बेसिकली आप वो नॉलेज का जो उनका क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई करके, क्योंकि सीडीएस को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सो वो सब क्लियर करके आप वहां पे गए हो। सो अभी नाउ दे डोंट वांटेड टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपको आप कितना जानते हो। व्हाट दे वांटेड टू टेस्ट योर साइकोलॉजी, कि आपने अगर प्रीवियस अटेम्प्ट में आपने कोई गलती की हो, आपका ऐसा परसेप्शन है, तो इसमें आपने क्या उसको इंप्रूव किया है। जो पिक्चर आप ऑब्जर्व करते थे, क्या अभी उसको आप और मतलब minutely ऑब्जर्व करना सीख गए हो। I'll tell you the example. Like I remember every few of my attempts. There was a picture जो टैट होता था ना, कि जिसमें ग्रेवयार्ड है, मतलब क्रॉस लगा होता है ना, and boy sitting, है ना। And previous attempt, like I wrote a story ना कि Umesh was a fantastic guy and we फलाना ढमकाना, he was a captain and he lost his life during insurgency and all, and fantastic story, मतलब अच्छी खासी story वगैरह। But then after writing that story, जब मैं I got confidence out and when I realized कि क्या गलती हो सकती थी, then I realized कि यार अगर ग्रेवयार्ड है, मतलब क्रॉस लगा हुआ है, तो उसका नाम उमेश कैसे हो सकता है। Get the point, है ना। उसका नाम रॉबर्ट हो सकता है, जॉन हो सकता है। So that level of observation they are looking,
ओके, कि जैसे कोई एक सोल्जर्स है, उनका कहीं पहाड़ों के ऊपर दे वर जस्ट मूविंग मार्चिंग, ऐसा एक पिक्चर होता है, एंड हल्का सा पहाड़ों के पीछे, बिकॉज़ इट्स अ शॉर्ट पिक्चर, इट्स अ ड्राइंग होता है एक्चुअली, वो पिक्चर नहीं, मतलब ड्राइंग्स होते हैं। सो रात का ऑपरेशन था, ऐसे वैसे वैसे सब जनरली वही लिखते हैं, बिकॉज़ ये सारे बायसेस हमारे दिमाग में होते हैं। मूवीज़ देखते हैं हम काफ़ी सारी, है ना? ऑपरेशंस अभी हमारे टाइम पे लक्ष्य था, वी यूज्ड टू कॉल दैट कि लक्ष्य की कैजुअल्टी हुई है ये। अभी तो उरी वगैरह जैसी मूवीज़ आ गए हैं। तो हमेशा वो रात को ऑपरेशन कर रहे हैं, बट हल्का-सा एक छोटा-सा सूरज का एक उन्होंने पेंट किया होगा, ड्रॉ किया होगा। एंड अगर किसी ने उसको ऑब्जर्व किया ना, वो उसने लिखा है कि हाँ, यस, वो रात भर मार्च कर रहे थे, लेकिन अभी सवेरे हो गया, फर्स्ट लाइट पे वो अपने पोस्ट पे पहुंच गए। इसका मतलब ही ऑब्जर्व दैट सन व्हिच वाज राइजिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। इस लेवल का ऑब्जर्वेशन चाहिए। दे आर नॉट आस्किंग यू टू कंप्लीट द स्टोरी, मतलब वो जो असिस्टेंट जो ब्रीफ भी करता है ना, so they will tell you that you have to observe the picture carefully, which we forget generally. So these are the experiences which have, मतलब ये सारी जो लेसन्स थे which I have learned through my SSB, जो काफी आगे जाके भी काफी काम में आए, कि मतलब जब भी हम जैसे, हाँ, सी आर्मी ऐसा एक जॉब है ना, जिसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, जो आपने कभी, मतलब नॉर्मल जॉब में कभी, कोई कॉर्पोरेट या सिविल जॉब में ऐसी चीजें इस नॉर्मल होना होता है, बट जब तुम कश्मीर में होते हो, आसाम, अरुणाचल में होते हो, यू नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद यू। ऐसे समय पे आपका कॉन्शियस होना, अलर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली अ मिलिट्री लीडर हु इज एन ऑफिसर, उसका कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। ही शुड नॉट कैरी एनी बायसेस, ही शुड नॉट कैरी एनी फिक्स्ड माइंडसेट्स। ओके, मतलब माइंड को सेट ही नहीं करना है, माइंड को ओपन रखना है। दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर, तभी तो वो लीड कर पाए। द मोमेंट यू सेट द माइंड, वो माइंडसेट बन गया आपका, यू कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ओके, so these are the things. So I just wanted to tell all the aspirants कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, इस चीजों पे ध्यान रखो। असेसर अपना काम करेगा, तुम्हारा जो काम है कि परसेप्शन को इनहांस करना है। तुम, यू हैव टू इम्प्रूव योर परसेप्शंस। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आ जाएगी, आइडियाज अपने आप आ जाएगा। आपका ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा है वहां पे। अगर आपने उल्टा पुल्टा कुछ भी ग्रामर के पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो ही इज नॉट अ इंग्लिश टीचर टू टेस्ट योर इंग्लिश ग्रामर। ही विल टेस्ट योर क्वालिटीज, कि सर स्विमिंग आता नहीं है, फिर भी बंदे ने पुल के ऊपर से जंप मारा एंड सेव द चाइल्ड। ओके, सो वो एक्शन दिखाना है उसमें, ये नहीं कि उसमें स्टोरी में लिख रहे हो आप कि ही इज वेरी करेजियस बॉय, ही इज वेरी ब्रेव बॉय, ही इज वेरी बोल्ड बॉय। वो लिख तो रहे हो, लेकिन एक्शन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो जब 8वीं 9वीं स्टोरी शुरू हो जाती है ना टैट में, तो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, वो उस साइकिल में घूमने लगता है, तो अपने आप जो उसका एक्चुअल नेचर है, जो उसका साइकोलॉजी, जो क्वालिटीज है, वो अपने आप बाहर आने लगती है। सो So मेरा क्वेश्चन था यही पे कि when you are a repeater, you actually prepare also for most of these tests because most of the information is already out. Most of us have already seen the images which are shown. We almost know most of the situation which comes in SRT, the kind of words that come up. So we prepare also because there are a lot of ways to prepare for it, and we kind of make stories, write sentences, react to sentences or situations. So we have a set answers, and similar questions or similar situation comes, we respond the same way. So and that's kind of a mindset that you're taking with you. So should we practice and go, or should we just practice 1 or 2 cases and just see how our speed is and then spontaneously perform there in psychology? Okay, a fantastic question. ये सेम क्वेश्चन मेरे को था आकाश, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुमने कहा कि हम जब रिएक्ट करते हैं, तो बेसिकली दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर रिएक्शन, दे आर आस्किंग फॉर योर रिस्पॉन्स। There is a difference between the reaction and the response. If you're going to lead a team of 100 people, not people, jawan, soldiers, and in a very arduous environment, मतलब काफी difficult environment में, war front पे, battle पे, या मतलब काफी difficult operations में आपको किसी टीम को lead करना है, तो आपको reaction से काम नहीं चलेगा। ओके, आपको response करना पड़ेगा। So now I'll tell you my experience, I can share my experience. मैं शुरू के, तुमने एक वर्ड यूज किया कि हम क्या उस स्पीड को इंप्रूव करें क्या। सी कैसा होता है,
मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, देन यू कैन कम टू नो व्हाट आई वांटेड टू से। मेरे फर्स्ट और सेकंड एसएसबी में आई कुड अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द एसआरटीज 60 to 58 to 60. I was very happy and I come out of the conference, वो जो psychological test है ना, I was very happy कि मैंने 60 to 60 सारे solve कर दिए, and I got out, conference out, and it happens every time. When I got recommended, I could only answer 25 SRTs. Okay, this is my experience. I mean, I can't lie to anyone. ये तो मैं clearly बता सकता हूँ. Now I cannot come to a conclusion कि मैंने कम SRT solve किए इसकी वजह से उन्होंने मुझे recommend किया. I don't know. But the difference between जब मैंने 60 out of 60 SRT solve किए थे और जब मैंने 25 किए out of 60 only, तो शुरू में जब मैंने किया था I was just reacted. वो situation आता था I was just reacted. और एक लाइन में उसको रिएक्शन करके इसको जस्ट खत्म करता था और बस स्पीड मुझे खत्म करना है. जब 25 मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जब एसआरटी लेके, आई वाज वेरी मच कॉन्शियस, आई वाज थिंकिंग. उस समय पे जब ऐसी सिचुएशन होती है जो काफी डिफिकल्ट होती है या काफी अननेचुरल होती है, उसमें वी वांट यू टू थिंक डिफरेंटली, वी वांट यू टू थिंक फर्स्ट, नॉट जस्ट टू रिएक्ट. और व्हेन यू ट्राई टू थिंक यू टेक सम टाइम. ऐसा नहीं होता है कि जस्ट तुम रिएक्ट कब करते हो, जब तुम्हारे पास यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट रिएक्टिंग. जब तुम्हारे पास प्री माइंडसेट्स होते हैं, फिक्स माइंडसेट्स होते हैं, क्योंकि तुम जब प्रैक्टिस करते हो ना क्लासेस में जाके, ये सारे जितने भी क्लासेस वगैरह होते हैं उसमें, तो हर कोई अपना अपना आंसर रेडी कर लेता है, तो सुन के भी वो दिमाग में आ ही जाता है, अच्छा यही लिखना है, उसने यही लिखा था, वो ये इसकी वजह से रिकमेंड हुआ था. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू. कि कोई मेरा फ्रेंड है, उसने कहा कि मैंने ये ऐसे लिखा, इसकी वजह से मैं रेकमेंड हुआ. वी डोंट नो एक्चुअली. ओके, वी डोंट नो. इवन स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जब मैंने 25 सॉल्व किए थे, दैट डजंट मीन कि बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इट. बट यस, देयर वाज अ डिफरेंस. देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन आउट ऑफ 60 एसआरटी सॉल्व करना एंड आउट ऑफ 60 सिर्फ 25 सॉल्व आंसर करना. जब मैं आंसर कर रहा था तो मैं काफी कॉन्शियस था, अलर्ट था. उस सिचुएशन में मैंने खुद को डाला था और तब मैं एक एक्शन लिख रहा था. ओके, मतलब he was sleeping and he saw fire coming out from a building वगैरह, so he rushed to क्या पार्किंग में चला गया, he called the fire brigade. ये मेरा आंसर होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड. सेकंड अटेम्प्ट में कि he waken up, उसने घर वालों को जगाया, he come out of the building, he observe कि कहाँ से फायर एग्जैक्टली आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जाके जितने भी मेन करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई था उसका स्विच ऑफ कर दिया. फिर उसने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया. फिर उसने जाके आसपास वालों को उठाया. उसके अंदर अगर उस बिल्डिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल्स होगा या कोई बंदा हॉस्टेज पड़ा हुआ या कोई जैसे कोई बूढ़ी औरत है या कोई बच्चा है, उनको रेस्क्यू कर लिया पहले उन्होंने. सो नाउ अब ये जब वो ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस एक्ट, उसमें टाइम लगता है ये सब लिखने में, ये सब सोचने में, एंड देन ही गॉट थ्रू. सो डोंट worry about the speed of answering the situation reaction test. You should practice about becoming a more conscious about the particular situation, more alert about that particular situation, and respond the situation. Don't react to it. Okay. Sir, I'll take that question a little ahead. Within psychology, in SRT, you can consciously answer because you have that time. Out of 60, you can do 40 also because time is with you. But that's not the same case with the TAT, that is thematic appreciation test, and also the VAT, because you only have 4 minutes to write a story and only 15 seconds to write a sentence on a word. So it's actually at a subconscious level. You don't know what might just come out as a thought or an idea or as a sentence that might come up. So how do you improve that to the standards that is required? Very right. Very right question. First of all, who's telling you to complete the story in 4 minutes? Who told you this? Like if you can ask any SSB aspirants, जो भी वहाँ पे जो उनके जो assessors होते हैं, they'll tell that you have to complete the story. You try to complete the story within 4 minutes, but that doesn't mean you have to complete. If you don't complete, you will not recommend. ऐसा किसी ने कहा है? नहीं. No.
No. ठीक है, because see, army or any armed forces, you take army, navy, air force, it's a job of a very stressful job. Okay, and especially as an officer, you have to have the quality of handling the stress. You should know how to work under a lot of pressure. Okay, as an officer, whether it is army, navy, air force, whether it is special forces, whether it is NSG, para, or any infantry, or any supporting arm, you have to work under pressure. That's what is expected out of you. They'll try to make you, pressurize you by putting some restrictions like 4 minutes में आपको story complete करनी है, 30 seconds में picture निकल जाएगा. But that doesn't mean कि अगर आपने story complete नहीं की इसका मतलब आप recommend नहीं हो गए. ऐसा किसी ने नहीं कहा है. They never said this. Okay. So now I'll tell you a glitch about it. It's a very good question because शुरू में मैं यही करता था. I used to focus more on completing the story and not to put sense in it. Understanding it. मतलब observation कम होता था हमारा. 30 seconds के पहले ही story लिखना शुरू कर देते. मतलब I used to do that. जब मैं recommend हुआ उस attempt में मैंने पूरे के पूरे 30 seconds लिए थे to observe the picture. ये कोई शेडी पिक्चर वगैरह नहीं होता. जनरली क्लासेस वगैरह भी बताते हैं ना कि वो पिक्चर टीएटी में क्लियर आता है. सिर्फ पीपीडीटी में वो थोड़ा सा इजी रहता है. टीएटी में क्लियर रहता है. No. I'll tell you. It's not a hazy picture. It's a drawing actually. If you see that, it's a drawing. ये भी see clarity क्या चाहिए तुमको यार. You don't know कि what they wanted to show you. When you observe anything, you have to observe. You just cannot put again. It's a mindset. It's a fixed mindset ना. ये bias है कि वो hazy ही रहेगा. अब तुम ये लेके जाओगे वो hazy रहेगा, तुमको hazy ही दिखेगा वो. Okay. You have to remove that goggle. कि ये hazy है या नहीं है, I don't know. It's a drawing. जो भी मेरे सामने है वो ही है. I have to think accordingly. है ना. तो मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है, जो भी है, जो मूड वगैरह होता है उनका पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. सो इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व तुमको पता चल जाता है. होता क्या है ना कि हम उस चीज को उतना टाइम नहीं देते. 30 सेकेंड्स में वो उतना ऑब्जर्व नहीं करते. मैं 30 सेकेंड्स में ऑब्जर्व करने के बाद भी आई टुक ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स टू थिंक कि क्या स्टोरी होनी चाहिए. टू एनहांस द परसेप्शन यू रियली हैव टू उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसको इंप्रूव करना चाहिए, परसेप्शन को इंप्रूव करना चाहिए. वो कैसे करेंगे? becoming super alert about a particular situation. सब कुछ हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंड में हमारे काफी सारे इंप्रेशंस होते हैं. वी कैरी लॉट ऑफ इंप्रेशंस जब हम जाते हैं क्योंकि क्लासेस में पढ़ाया जाता है सब कुछ. बेसिकली एसएसबी क्लास इज अ वेरी आई डोंट नो मतलब बहुत ही कम चीजें. सी आई टेल यू एग्जांपल. अगर किसी को बुखार हुआ है तो कौन सा डॉक्टर बेटर है कि जो सभी को पैरासिटामोल दे रहा है. ओके 10 लोगों को बुखार हुआ है, 10 लोगों को पैरासिटामोल दिया उसने, बुखार तो कम हो गया उनको, लेकिन कुछ लोगों का दोबारा आ रहा है. और दूसरा डॉक्टर है जो पहले टेस्ट कर रहा है कि इसका बुखार किस वजह से आ रहा है. उसको डेंगू का टेस्ट किया उसने, मलेरिया का टेस्ट किया उसने, या व्हाटएवर वायरल फ्लू का है, या किसी का जस्ट एक माइंडसेट है कि मेरे को बुखार है तो नहीं बिल्कुल भी. उसके बाद अकॉर्डिंगली ही उसका वैसे ट्रीटमेंट दिया उसको कि आपका सीरियस है, आपको तो डेंगू का बुखार है, आपको एडमिट होना पड़ेगा. आपका नॉर्मल वायरल फ्लू है, कुछ नहीं है, इसको आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाए. आपके बस दिमाग में बुखार, आपको दिमाग बुखार नहीं है वैसे. ओके बस आपका डर है ये. सो दिस इज एन एसएसबी क्लासेस शुड बी. कि कोई बंदा अगर कैसे रिकमेंड हुआ ही डजंट नो अबाउट दैट. वो जो भी आके बोलेगा हम उसको एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि हाँ ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही करोगे तो आप रिकमेंड हो जाओगे. वैसा नहीं है. इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट. जो स्टोरी मैं लिख के रिकमेंड हुआ हूँ वो स्टोरी तुम लिख के रिकमेंड नहीं हो सकते. बिकॉज मुझे खुद को भी नहीं पता है कि मैं क्यों रिकमेंड हुआ हूँ. ओके सो वी कैन नॉट पुट अ टेम्पलेट. सो इसलिए ये प्रेशर का टेस्ट है. अंडरस्टैंड दिस कि 4 मिनट्स में कंप्लीट करना है. बट नोबडी सेड दिस. कोई भी ऐसे ये नहीं बोलेगा अगर आपने कंप्लीट नहीं करी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे हम. ओके इवन PPDT में if you remember they will clearly tell you if you don't able to complete the story you will get one more minute during the group discussion. Before that you'll get 1 minute to you can complete the story and narrate it to everyone. है ना. So why they are telling this? Because they knew that they're interested in the kind of idea and the level of idea that you're going to put. Yeah, exactly. The idea, that is what is expected out of a military leader. You have to think, you have to come out with the idea. है ना कि तुमको ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा जब तुम बैटल
hardened areas में रहोगे, operations में रहोगे, you have to come up with a different ideas as a military leader. That is what is expected out of you ना. Not to complete कि सारे rules follow कर रहे हो तुम कि 4 मिनट में story complete कर ली तुमने, बहुत अच्छी handwriting लिखी तुमने, बहुत अच्छा grammar लिखा तुमने. Have you ever seen such guy who's got recommended जिसकी सबसे अच्छी अंग्रेजी है, सबसे अच्छी handwriting है? No, no. I'm telling you. ठीक है. So अच्छे handwriting वाले they should go and become babus. Okay? They should not come to armed forces. Okay. We need a very very strong minded people. Okay. है ना? Got it. Okay. Sir, I have some more question on the interview part, and also a part of psychology also requires it, where you write a self description, which is more of what you know about yourself, and in the interview you speak about it. So how do you understand as part of self concept? And there's a very common word that we use called introspection. Whenever you don't get recommended, that's something which after the result people will tell you, introspect yourself, figure out what you did not do well. So how do you look at the concept of knowing self and also the introspection part of it? Yeah, actually that's a fantastic part of an SSB. That is the only test which you can prepare in advance. Okay, because you never know ki which kind of word is coming in BAT, which kind of situation is coming in SRT, which kind of picture is coming in TAT, or what kind of questions will be asked in interview. तुमको ग्रुप इसमें GTO में कौन से टास्क मिलेंगे, you never know. But सेल्फ डिस्कशन का एक क्वेश्चन आएगा, वो तुमको हमेशा पता होता है, और उसके क्वेश्चन भी सेट होते हैं कि what are 5 things that your friends about you, or what parents thinks about you, or teachers thinks about you, and what you think about yourself. So now it's an opportunity. Take it as an opportunity. इंट्रोस्पेक्शन क्या है? बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि द एज ग्रुप जो होता है जनरली 16 इयर्स से लेके 25 इयर्स तक का ये एज ग्रुप होता है हमारा. वी आर वेरी वाइब्रेंट, वी आर वेरी एनर्जेटिक. बट ये जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, कहीं कोई उंगली दिखा देता है ना कि यार तू यहाँ पे गलत कर रहा है, तो वी फील वेरी अननॉयड कि यार वी डोंट वांट आवर फ्रेंड्स टू बी अराउंड, या उस लोगों के साथ हम बातें नहीं करते जो हमको हमेशा हमारी गलतियां दिखाते हैं, है ना. जनरली ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स भी वैसे होते हैं जो हमेशा तारीफ करना चाहिए, तो दैट्स नॉट अ गुड फ्रेंड. सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है जो एसएसबी सिखाती है. आई नेवर सीन एनी इंटरव्यू बिकॉज़ आई हैव वर्कड बिफोर जॉइनिंग द आर्मी इन कॉर्पोरेट्स एंड अदर आईटी इंडस्ट्रीज आल्सो. आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ टेस्ट. आई मीन अभी प्रोबेबली रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किए होंगे, बट ऐसा कि राइट अबाउट योरसेल्फ, है ना, व्हाट पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट ही थिंक्स अबाउट यू. Now it's a test of perception only, but ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिसपे आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जा सकते हो. दिस इज द ओनली पार्ट विच यू कैन प्रिपेयर इन एडवांस. ओके, सो जितना सिंपल, जितना लॉजिकल आपको लगे उतना लिखो. डोंट बोस्ट योरसेल्फ कि मैं तुरम खाऊं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, टीचर्स ऐसे सोचते हैं, ये वैसे सोचते हैं. ठीक है, अगर ये सब चीजें देखोगे तो आप वही रहो ना, फिर आप सुपरमैन हो तो आप चड्डी पहन के उड़ जाओ, है ना. आर्मी में सुपरमैन की जरूरत नहीं है ना. वी नीड यहाँ पे काफी सिंपल बट इफेक्टिव पीपल. ठीक है, जो बहुत ही सिंपल रहता है जनरली जब रहता है, बट व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम्स हिज डिसीजन मेक्स एन इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट. ओके, तो ऐसे बंदे चाहिए हमें. तो वो बंदा तभी बन सकता है जब जनरली अगर आप ये लिखते हो कि आई एम विलिंग टू लर्न, आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके, विलिंगनेस इज एन एबिलिटी. विलिंगनेस जो होता है ना, यही चीज आपको लेके जाएगा, आपको क्रॉस कर देगा एनी ऑब्स्टेकल, एनीथिंग दैट यू फील कि ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है. बिकॉज वॉल इज नॉट देयर टू स्टॉप यू, इट इज देयर टू टेल यू दैट हाउ बैडली यू वांट इट. सो अगर आपको लगता है कि ये एसएसबी का वॉल मेरे सामने है, तो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज टू स्टॉप यू टू बिकम एन ऑफिसर. इट विल टेल यू हाउ बैडली यू वांट इट. ओके, सो उसको पार करने के तरीके अपने आप मिल जाएंगे. बस वो विलिंगनेस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए उसके लिए. ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग में मैं उठ के 5 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मुझे आर्मी में जाना है, और रात में दोस्तों ने पार्टी पे बुलाया, तो यू शुड से नो. नहीं यार, मुझे सवेरे उठना है, आई कांट गो. That's a commitment. ठीक है, तो my friends thinks about me कि he is not social, you know, वो ठीक है ना. जब सेल्फ डिस्कशन में आ जाएगा कि my friends think I'm not social, but क्यों, वो इंटरव्यू पूछेगा तुमको, तो बोलेगा कि मैंने मॉर्निंग में I've decided कि मैं मॉर्निंग में उठ के मैं I want to go for a fitness training.
एंड दोस्तों ने पार्टी रखी थी तो मैंने साफ मना कर दिया. He will understand. Okay, he will understand. Got it. So it's a world class procedure. I'm telling you, SSB is a world class procedure. Hmm. You cannot fake anything in SSB. It will come out. So be natural. Okay, be very simple, natural, and just tell them, sir, I badly wanted. I'm just willing to do anything. इसलिए तो ट्रेनिंग में चाहिए तुमको OTA, IMA, NDA, and especially I'm telling you about the OTA. It's a, I mean, very horrible experiences people have initially. जिसको कुछ पता नहीं होता है, जिसने कुछ सुना नहीं होता है ना, वो शॉक में चले जाते हैं, मेंटल शॉक में, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ. ठीक है, there are dropout rates. You must have heard about it. There are 10 to 15 dropout rates. I've seen people quitting. You know, शुरू में बहुत जोश में थे and they just यार नहीं यार मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है. Okay, so that's how it is. Sir, if you could also speak about how do we approach the interview process. Also, an important element of that also is the PIQ form that you fill, which is also goes to psychologist. So you there also you have an opportunity to tell about yourself, and more or less the interviewing officer and psychologist will get a perception about you. So how do you approach interview and the PIQ also, and what do you enter? Yeah, okay. See, I can tell you, I can only share my experience. So Yeah. I just tell you how I experienced it, just because I have gone through a lot of SSBs. Okay, so still मुझे सारे aspirants से यही I just wanted to tell them one thing कि don't become again fixed mindset about कि मेजर सिद्धराम ने ये कहा था, that's why मैं ऐसे ही करूंगा. I wanted to open the mind of the people. Okay, so interviewing officer again, it's a fantastic opportunity because आप वन ऑन वन इंटरेक्शन के लिए आपको कोई पूछ रहा है, आपको डायरेक्टली कोई आपसे बात कर रहा है, तो PI बिसाइड फ्रॉम PI एंड ऑल, उनका भी एक सेट पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट टू सी कि क्या आप इंस्ट्रक्शंस ढंग से सुन सकते हो कि नहीं. इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इज अ टेस्ट ऑफ योर विलिंगनेस कि हाँ एक आध दो क्वेश्चन मिस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको रिजेक्ट कर देंगे या नॉट रेकमेंड कर देंगे. ओके, so now I share my story. मुझे पूछा गया था कि what was the like organizing ability or what was the experience about your family, tell me something about your family. तो I quoted one incident कि मेरे जो अंकल आंटी थे उनकी 25th एनिवर्सरी थी. So I said that कि sir, I have planned their 25th anniversary. I planned a surprise party for them. They were staying in Solapur. I was in Pune. मेरे जितने भी cousins थे मेरे, like my brothers, sisters and all my cousins, everybody is in Pune, someone is in Mumbai वगैरह. I decided कि रात को जाके 12 बजे घर पे जाके एकदम से उनको सरप्राइज करेंगे. सो मैंने सबको इकट्ठा कर दिया, सबको बता दिया कैसे जाना है क्या. इट वाज इन 2006 और समथिंग. वी वर इन कॉलेज. मेरे कुछ सिस्टर्स तो स्कूल में थे 9th and 10th. तो घर पे भी नहीं बताया हमने किसी को. तो somehow we managed the money to ट्रैवल करने के लिए, एंड क्योंकि कॉलेज टाइम में तो कोई कमाता नहीं था. सो आई वाज आल्सो इन फर्स्ट ईयर ओनली, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं था, 18-19 ईयर्स ओल्ड. एंड देन मैंने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा, सॉरी मेरे कजन्स को इकट्ठा कर दिया. फिर भी टुक अ ट्रेन, फिर ट्रेन से हम कैसे आ गए, फिर हमने कैसे ऑटो रिक्शा लिया. काफी डिस्टेंस से पहले हमने रुका, तो वहाँ पे काफी सारे आसपास पड़ोस में कुत्ते थे, तो मैंने पहले से बिस्किट्स वगैरह लाके रखे थे उनको, पहले से ही बिस्किट्स वगैरह लाके उनको थोड़ा सा ध्यान डिस्टर्ब किया. नहीं तो अगर वो भौंकने शुरू कर देंगे तो फिर वो जाग जाएंगे नेबर्स, तो मेरे अंकल आंटी को पता चल जाएगा. देन फाइनली हम लोगों ने कैंडल्स जला दिए एंड बिल्कुल हमने शूज निकाल दिए ताकि वो चप्पल्स का आवाज ना आ जाए, शूज का आवाज ना आ जाए, है ना. तो शूज निकाल के हमने वहां पे गए और हमने कैंडल जला दिया और हमने बेल बजा के हम छुप गए. एंड आंटी ने दरवाजा खोला एंड सामने केक था वो. So it was a very successful attempt. Then we had a party and everything. So he was listening it very carefully, you know. And probably एक 18-19 साल का फर्स्ट ईयर में एक बस सरप्राइज पार्टी करना, what's so big deal in it? But that's how they want. They wanted to see कि क्या ये आगे जाके किसी दुश्मन के पोस्ट के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है. You know कि सेम एलसी को क्रॉस करके हुए जाना है, माइनफील्ड है उसके बीच में, उसने टीम को सिलेक्ट कर दिया, कौन सी टीम मेंबर्स उसको पर्टिकुलरली चाहिए, उसने रूट को सिलेक्ट कर लिया. तो जहाँ पे माइनफील्ड नहीं है, जो आईएसएल होती है उसके थ्रू गया वो, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट है, लॉन्गेस्ट रूट है, जिसके ऊपर ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रूट है जो
जो एनिमी है वो नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ से कोई आ जाएगा, तो वहां पे गए वो, एंड माइन्यूट डिटेल्स की जैसे शूज निकालना कि आवाज ना आ जाए, सो ही नो हाउ टू कीप द surprise maintained throughout the end. Okay, so yes, he's fit for the job. That's correct. He's got all the qualities what you want. Planning ability आएगी इसमें, and वो logical reasoning आएगी इसमें, initiative आएगा कि इसने सबको इकट्ठा कर दिया. You don't have to tell कि मैं बहुत initiative लेता हूँ सर, मैं बहुत ऐसा करता हूँ, मैं कॉलेज के इलेक्शन में था, मैं बहुत पार्टिसिपेट करता हूँ, बट एग्जैक्टली क्या करते हो तुम? खुद को नहीं बता सकते कि मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं लीड करता हूँ. यू हैव टू शो दैट इन एक्शन. ओके, सो ये स्टोरी मैंने बताई थी जब मैंने गॉट थ्रू. Got it. So मैंने एक चीज नोटिस की, जब आपने बताया, नरेट किया, you were giving details, or I know attention to the details because you have actually done it. तो वो काफी ज्यादा उभर के आ रहा था कि मतलब आपको पता है कि माइन्यूट चीज इंपॉर्टेंट है. या एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई मैं ये बोलता हूँ ना कि बी वेरी ऑनेस्ट. मैं इसलिए बोलता हूँ बी वेरी सिंपल, बिकॉज आपने जो चीज किया है वही उनको बताओ. यू कैन नॉट फेक इट. मैंने वही बताया, यू कैन नॉट फेक इट. सो जनरली वही होता है कि कुछ मेकअप स्टोरीज हम बताते हैं जस्ट टू बूस्ट आवरसेल्फ, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बताते कि मैं एनसीसी में ऐसा था, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, मैंने ये किया, वो किया. तो वो ठीक है, मतलब थोड़ा सा किया होगा और आप थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए खुद को यू जस्ट उसको एग्जैजरेट करते. वो विद इन अ सेकंड दे विल कैच यू. ये यहाँ से एग्जैजरेशन स्टार्ट हो गया है ना सर. वो काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है कि यू वांट टू इंप्रेस द इंटरव्यूअर. ये सोचिए कि वो इंप्रेस हो जाएगा तो मेरे को शायद रिकमेंड कर देगा. यार आई एम जस्ट टेलिंग यू, मतलब जो भी एसएसबी के लिए जाता है, ही इज अ नॉर्मल 20-22 साल का अपना लड़का है जो कोई ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है. वो एक ब्रिगेडियर साहब को, एक मेजर जनरल साहब को क्या इंप्रेस करेगा बताओ? You just cannot impress him. Okay, that is the biggest mistake you do. Yes, you're right. You're absolutely right, Akash. तो ये चीजें शुरू में हमको भी लगता था कि I have to impress, because क्या है ना, हमारे इंडियन मेंटालिटी में हमको बताया जाता है जॉब के लिए जाओगे ना तो बॉस को हमेशा, जो इंटरव्यूअर है उसको हमेशा इंप्रेस करो. बट नॉट यार, दिस इज नॉट जस्ट अ फकिंग कॉर्पोरेट जॉब, एंड दिस इज इंडियन आर्मी. यू जस्ट कैन नॉट मेक फूल आउट ऑफ देम. ओके, सो हाँ, आप जितना ऑनेस्ट रहोगे, आप जितना क्लियर रहोगे, we want you like that. हमको वो मिट्टी चाहिए ना जिसको हम जैसे चाहे उसको बना सकते, उसका घड़ा बना सकते. That's correct. ना तो ऑलरेडी बना बनाया चाहिए जिसको ट्रेनिंग एकेडमी में जाएंगे तो टूट जाएगा, और ना ही ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें कुछ है ही नहीं बनाने के लिए. ठीक है, we want a very raw material so that we can make him a good officer out of them. Got it. So coming to the group testing, which happens there, which has a series of tasks. So how do you approach that? Because army is all about the team that you lead and how you manage a group. So now when you look back, because even in army you have the group planning that you do even before a task. So how did you perform in your group planning exercise and task? And now you look back, what did you do differently that you got recommended? Yeah. So I don't know how did I perform, but when I got recommended, so probably थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया होगा, इसकी वजह से I got recommended. I'm telling you, I don't know why did I got recommended. Yes, but regarding the GTO task, again it's a very fantastic procedure, very different procedure. Okay, see, I'm telling you all these things now. After मैं उस पुल के उस कोने में खड़ा हूँ ना जिसको क्रॉस करके मैं अभी आ चुका हूँ. So now I can see, and when I look back, when you ask me, when you look back, so it's a very, very fantastic moments of my life. Even the SSB, even the training, throughout the journey, energy, all experience. It was a very fantastic experience, I'm telling you. So group task जो होता है, because it's a group task, तो group के साथ होता है, team के साथ होता है. It will test you कि आपको जब आप आर्मी में जाओगे, आपके साथ कोई आपका कोई पंजाब से होगा, कोई सरदार होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई मणिपुरी होगा. एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ इंडिया कि हमको वो लैंग्वेज भी पता नहीं होगी. कोई मणिपुरी आएगा तो वो मैथिली लैंग्वेज पता भी नहीं होगी, वो दिखता भी हमारे तरह नहीं है, बट स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर. नॉट ओनली वर्किंग टुगेदर, वी कैन डाई फॉर हिम. ओके, दैट लेवल ऑफ बॉन्ड विल बी क्रिएटेड अमंगस्ट अस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. तो ये सब चीजें होने के लिए क्या ये बंदा कोऑपरेटिव है? Is he cooperative enough? Is he open himself with
डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, मतलब सुपर इंटेलिजेंट बंदा होगा ना तो वो भी टिक नहीं पाएगा, इसलिए तो अब्दुल कलाम जी रिकमेंड नहीं हो पाए, है ना। तो इसलिए इतना बंदा चाहिए कि वो हर किसी के साथ कोऑपरेट कर सके, एनी टाइप ऑफ पीपल। सी आई एम टेलिंग यू, हमको हमेशा हमारे जैसे बंदे पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करे, या थोड़ा सा हम जैसे वैसे ही थोड़ी दो तीन क्वालिटीज उसमें हो तो हमारा वो चल जाता है, यार हमारे उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है वगैरह। बट ऐसा आर्मी में नहीं चलेगा। यू कैन नॉट चूज योर बडीज, यू कैन नॉट चूज योर टीम। वो जैसे वहां पे है, आप जिसमें जहाँ पे भी कमीशन होते हो रेजिमेंट में, आपके ऑफिसर्स, आपके सीनियर्स, जूनियर्स, यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि मुझे ऐसे ही ऑफिसर चाहिए, मुझे ऐसा ही कलीग चाहिए, ऐसा ही सीनियर चाहिए मुझे। नो, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। ये सिविल में, कॉर्पोरेट में ठीक है कि यू कैन चेंज द जॉब इमीडिएट। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यू जस्ट नॉट क्विकली शिफ्ट योर, मुझे सीओ पसंद नहीं है, मैं जस्ट निकल जाता हूँ दूसरे यूनिट में। ऐसा नहीं होता। So you have to work with different kind of people. That is what is a group task. So भले ही आपको वो solution आता हो नहीं आता हो, doesn't matter कि जो क्रॉस करना है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में या समथिंग, doesn't matter. बट क्या आप टीम के साथ हो? आर यू कोऑपरेटिंग देम? आर यू हेल्पिंग देम? भाई बल्ली मैं उठा लूंगा, तेरे को सोल्यूशन आ रहा है, तू चला जा आगे, मैं बल्ली उठा लेता हूँ। कम से कम उतना तो कर सकता है, या कम से कम एटलीस्ट जब एक ग्रुप किसी डिस्कशन में जा रहा है, कहीं पे सोल्यूशन पहुंचने वाला है, तो बीच में ही जस्ट खुद को इंप्रेशन मारने के लिए उसने पूरा रूप बदल दिया, है ना। भले उसकी आइडिया ठीक है, लेकिन जब कंक्लूजन पे आ रहे थे मिलिट्री प्लानिंग में, और अचानक उसने बोल दिया कि नहीं, अभी हम ईस्ट से नहीं जाएंगे, हम वेस्ट से जाएंगे, क्योंकि वेस्ट का रास्ता ऐसा है वैसा। तो अभी अगेन ही विल किल द टाइम। ओके, बिकॉज देयर आर सॉल्यूशंस। कभी किसी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशंस होते नहीं, 10 सॉल्यूशंस होते हैं। बट टीम सक्सेसफुल तब होती है ना कि आपको राइट टाइम में आप राइट जगह पे पहुंच जाओ। तो भले चलो मेरी आइडिया एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन टीम ने बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे आ गया, किसी दूसरे बंदे की आइडिया उन्होंने पिकअप कर ली, दे मेक अ प्लान, सो आई विल गो विद देम, नॉट एन इशू। मैं उसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, इतना ही देखना है हमको। जरूरी नहीं कि हमको हमेशा किसी चीज का सोल्यूशन पता ही हो। ओके, दैट इज व्हाट इज अ ग्रुप टास्किंग। सर ग्रुप बट यू हैव टास्क, टू कंप्लीट द टास्क। सर ग्रुप टास्क के अंदर ही there are situations because you are in a group, there will be few individuals जो repeater होंगे या फिर उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग की होगी। सो जैसा कि आपने बताया, they will take a different route in a GP या फिर ग्रुप डिस्कशन में कुछ और बोलेंगे, which are kind of a disruptors, जो आपको बोलने नहीं देंगे, and they will keep on saying। तो ऐसा भी होता है, तो हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस, क्योंकि आपको शायद फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द अदर इज आल्सो कि बिकॉज व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, तो आपको लगता है अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा होगा नहीं, तो वो डेस्परेशन भी होता है कि आई वांट टू गेट रिकमेंडेड, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट एग्जैक्टली बोथ पार्ट ऑफ द डिसरप्शन पार्ट, हैंडल इट, एंड द डेस्परेशन पार्ट ऑफ कि मैं नहीं होगा तो क्या करूं अभी। हाँ एग्जैक्टली, यू राइट। सो ये जो डेस्परेशन होता है ना, ये किसी कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग कि बिकॉज मैंने ग्रुप डिस्कशन में बोला नहीं, इसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं हुआ। बिकॉज क्या होता है डिस्कशन में, इट इज यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ ना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाया, और फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डोंट नो, यू नॉट कम टू नो। किसी भी ऑफिसर ने आज तक जाके अपना रिजल्ट नहीं देखा है कि किस वजह से मैं रेकमेंड हुआ या किस वजह से मैं रेकमेंड नहीं हुआ। दे विल नॉट शो यू द रिजल्ट। सो प्रोबेबली वो इंटरव्यू की वजह से रेकमेंड नहीं हुआ हो, लेकिन उसको लगेगा कि मैंने ग्रुप डिस्कशन में बोला नहीं, इसकी वजह से मैंने, उसकी साइकोलॉजिस्ट ने उसको भले ही नॉट रिकमेंड कर दिया, बट वो सोचेगा कि मैंने ग्रुप डिस्कशन में बोला नहीं, इसकी वजह से मैंने। सो ये जो कंक्लूजन्स आते हैं हम, ये हमारा बहुत लिमिटेड कंक्लूजन्स है, लिमिटेड परसेप्शन की वजह से ये कंक्लूजन्स आते हैं, है ना। यू नेवर रियली, किसी आपको कॉन्फ्रेंस में नहीं बताते बिकॉज चेस्ट नंबर ये फलाना फलाना, आपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया, इसकी वजह से आप रेकमेंड नहीं हुआ। कोई ऐसा बताता नहीं बताता। देन व्हाई डू वी कम टू अ कंक्लूजन? बिकॉज ऑफ दैट ओनली। there are how many tests are there? Yeah, there are more than 12 13 14 tests are there, no? 6 psychological tests, इंटरव्यू है, 9 ग्रुप टास्क है, और 5 दिन का टेस्ट प्रोसीजर है। हाउ डू यू कम टू नो कि किस कहाँ पे मैं कमी पड़ गई मेरी, जिसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं हुआ? आप नहीं बता सकते। दैट्स करेक्ट। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट असेसर्स। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक आईओ होता है, एक जीटीओ होता है। ठीक है, तो आप ये कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस वजह से हुआ। हाँ, आप एक मतलब अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि मैं किस वजह से रिकमेंड नहीं हुआ। तो व्हेन यू आर नॉट श्योर,
it's sensible not to conclude anything. Okay, again, then what to do sir? मतलब ये क्वेश्चन होगा कि ठीक है, अगर मैं ये कंक्लूजन पे ना आऊं, मैं सोचूं नहीं कि क्या मिस्टेक होगी, तो मैं क्या करना चाहिए? अगेन, स्टिक टू अ सेंसिबल सॉल्यूशंस, स्टिक टू अ कॉमन सेंस, लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पे कि यार लॉजिक क्या था कि चलो पूरा जो टीम को 15 मिनट उन्होंने दिए थे, तो 15 मिनट में 14 मिनट के ऊपर पूरा प्लानिंग खत्म हो गया था और हम में से कोई उठ के वो ग्रुप प्लान बताने वाला था, तभी बीच में जाके मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे को एक आइडिया ऐसी आ गई, आउटस्टैंडिंग आइडिया आ गई थी, बहुत अच्छी आइडिया आ गई थी और मैंने बोल दिया। फिर वो डिस्कशन दोबारा शुरू हो गया और फिर जीटीओ ने कहा कि चलो योर टाइम इज ओवर नाउ, है ना? तो आपको लगा क्या कि यार मैंने तो इतना अच्छा बोल दिया था, बहुत अच्छा सोल्यूशन था मेरा, बहुत आउटस्टैंडिंग था वो, बहुत टैक्टिकली लॉजिकली बहुत सही था। बट अगेन वही है ना कि यू नेवर नो कि आपको नॉन कॉपरेशन की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे सोचा कि उस समय में क्या सेंसिबल एक्शन हो सकता है, अगर टीम बोल रही है कि चलो कंक्लूजन पे आ गई है, सॉल्यूशन बन रहा है, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। नाउ आई टेल यू आकाश, आई हैव सीन पीपल recommended who have not even uttered a single word in the group discussion. Yeah. Okay. हाँ, हमारे टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोला था, बट ऐसे नहीं कि बहुत ऊंचा ऊंचा। जनरली मेरे जब मैं रेकमेंड हुआ था उस अटेम्प्ट में तो काफी मतलब जनरली हर कोई अपना अपना पॉइंट दे रहा था एंड इट वाज अ वेरी नॉर्मल। हमारे ग्रुप में से आउट ऑफ 10 6 गॉट रिकमेंडेड, तो ग्रुप भी थोड़ा अच्छा, तो दैट वाज लक फैक्टर हो सकता है वो। बट अगेन, बी सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ओके, आपका अकेले का टेस्ट नहीं होता। जब भी आप जीटीओ में जाओगे, एक चीज दिमाग में रखो, आपके अकेले के टेस्ट नहीं हो रही है वो, आप वही करो जो टीम के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज नीडेड राइट नाउ इस सिचुएशन, आप उतना ही करो, दैट्स इट। उसी के ऊपर फोकस करो आप। एंड आपको कमांड टास्क मिलेगा, आपको लेक्चरेट मिलेगा जहाँ पे इंडिविजुअली आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगेगा कि सर ग्रुप में, फिर आप बोलोगे कि मुझे अगर मैं हमेशा ग्रुप के साथ गया तो मुझे मेरा खुद का इंटेलिजेंस दिखाने का मौका कब मिलेगा? तो वो इसलिए कमांड टास्क बनाया ना आपके लिए। हाँ, सो कमांड टास्क में आप दिखा दो, यस मेरे पास भी क्विक सॉल्यूशंस आ सकते हैं। That's correct. Okay. Sir, if you could also speak about, the physical fitness part of it, how can people prepare and how important it is in terms of service selection board and even in the academy when you join in? Yeah. Okay. First of all, don't bog down much about the fitness. Academy में जाओगे आप जैसे भी हो, आपको ठीक ठाक करके वो एक गुड सोल्जर बना ही देंगे, because you cannot pass out from an academy with a bare minimum standard से ही आपको निकलना पड़ता है। और आप, it's a very systematic training procedures, training methods in the academies, very scientifically designed testing procedures. Generally हमको लगता है कि यार बहुत रगड़ा है, बहुत ऐसे वैसे, but it's very systematic, I'm telling you. Okay, every रगड़ा पट्टी और every जो भी तुम लोगों ने सुने होंगे ना सेशंस वगैरह बाकी ऑफिसर्स हैं, it has got a scientific reason behind it. So don't worry about it. हाँ, एक बेसिक मेंटेन करना अपना फिटनेस जितना आप खुद को मतलब your body should not be on restriction to perform any task. That level of fitness is required for SSB or to join the OTA. Okay. Your body should not be a restriction. कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा इतना ज्यादा वजन है, या बिकॉज मेरे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो you should maintain that much fitness. Okay. Got it. So you spoke about OTA. So how was your experience when you went into OTA, and any memorable incident that you have from that time which you still cherish? Yeah. Definitely. Yeah, so many memorable incidents, and it was like a dream come true for me. OTA. See, I'll tell you one thing about the OTA. OTA is one of the toughest military academy in the world. I must say that. Not I'm exaggerating it. It has got some reasons, because see, first of all, it is in a location which is extremely hot, extremely humid. But in still extreme heat and weather, you have to complete all the tests, and there is no compromise in any standard. I'm telling you. Like the IMA guys who have to complete the same standard of BPT or PPT in Dehradun. Dehradun is a fantastic weather, I'm telling you. ठीक है, but वो same चीज आपको half time में complete करनी है in OTA में with that extreme heat and weather conditions.
But of course, every academy has got their own toughness. But still, being from a OTA, I must say that जो 9 months का जो training period होता है, it was a very memorable, time of my life. Incidents I wanted to say. Initially क्या हुआ था ना, जब हम when I joined, I was from a Kohima. You must have interviewed. I've seen Arjun sir, Toor sir. They were my seniors. And तो जब हम शुरू में गए थे फर्स्ट डे पे, मेरे सीनियर थे. he's from 2 para. He's now in 2 para SF. He was our AEO. And सर ने हमको कहा था कि now tell me what is the color of your blood. And everybody said, sir, maroon, red. So, no, from today onwards the color of your blood is yellow. And we were like, यार what, मतलब दिमाग में ऐसे आया था, what nonsense यार, ये क्या येलो क्या होता है. We were not, मतलब just आए थे ऐसे ही. And then the color of Kohima company is a yellow. And initial days में ना वो हर कोई नया होता है, कोई अलग अलग स्टेट से आए, कोई तमिलनाडु से है, कोई मणिपुर से है, कोई कश्मीर से है, किसी के साथ किसी का कुछ नाम पता नहीं, किसी का नाम भी बहुत अलग अलग लग रहा है कि यार ये क्या नाम है यार, ये कभी सुना नहीं. क्योंकि हम कभी बाहर जाते नहीं उतना, कभी हमारे मतलब आर्मी या आर्म फोर्सेस ही ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, आप मिलते हो. एंड बट एट द एंड ऑफ द टर्म, जब वो 6 महीने खत्म हो गए ना, एक एक कॉम्पिटिशन्स होने लगा. मार्च एंड शूट एंड फुटबॉल, बास्केटबॉल, फायरिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ड्रिल कॉम्पिटिशन्स एंड लाइन एरिया, ये सब. तो अपने आप जब हम उस दौरान जा रहे थे, तो वो जो स्पिरिट होता है कंपनी के लिए, कोहिमा के लिए, वो अपने आप डेवलप होने लगा. एंड आई टेल यू आकाश, मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं जब एंड टर्म हो गया, हमारे सीनियर्स पास आउट हो गए. जब वो आ रहे थे हमको लास्ट टाइम, वही हमारे जो एईओ थे, उन्होंने आके पूछा, या नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ योर ब्लड. तो बहुत प्राउडली हमने सबने कहा था कि इट्स येलो एंड इट विल ऑलवेज रिमेन येलो सर, कुछ भी हो जाए. एंड हिमा कोहिमा जब बोलते थे ना, तो शुरू में तो लगता था यार क्यों, क्या है यार ये. बट जब लास्ट में इट वाज कम आउट ऑफ सडनली, मतलब जस्ट दिल से सबके लिए आ गया. एंड जस्ट विद इन अ नेक्स्ट वीक हमारा जूनियर टर्म आ गया. And the same question we asked them, tell me what is the color of your blood. So they have to say yellow. So that's the spirit, and that is in, I mean, जैसे वो चिप होता है ना लैपटॉप में या कंप्यूटर में, वो आपको इनबिल्ट किया जाता है. तो हमारे में वो इनबिल्ट कर चुके हैं. इट इज नॉट बाय वन पर्सन और समथिंग लाइक दैट. वो अनकॉन्शियसली हो चुका है. दैट इज व्हाट इज मिलिट्री एकेडमी, दैट इज व्हाट इज ओटीएज. तो हम कहीं पे भी जाएंगे ना, भले ही आपको हमारा खून मरून लगे, रेड लगे, हमको हमेशा वो येलो ही लगेगा. ठीक है. so that's a spirit that we have developed. It will never end. It will never end. One more incident I wanted to just wanted to share with you. एक बार क्या हुआ था कि फॉलोइंग था हमारा, मतलब हमारे सीएसएम ने कहा था कि there is one organized central lecture था हॉल में हमारे जूनियर कोर्स के लिए. आई एम फ्रॉम 93. तो 93 का सभी सारे जूनियर्स आएंगे. तो हमारा एक सीनियर था एसईओ, वाज एन एसईओ. तो उसको बोला कि तुम रिपोर्ट देना. तो सीएसएम जो हमारे थे, उनको कोई टास्क याद था, तो कोई दूसरा आ गया था. he was quartermaster थे. सो ही केम एंड उन्होंने रिपोर्ट लिया. तो एसईओ ने काउंट किया, तो हमारे 2 कैडेट्स मिसिंग थे हमारे कोर्स में. कहीं यहाँ वहाँ देने भाई गए होंगे या सोए होंगे. तो बट टाइम बहुत शॉर्ट था, 5 मिनट के अंदर वो सेंट्रल हॉल में पहुंचना था. ठीक है. तो सीनियर ने कहा कि मुझे उन दोनों के नाम चाहिए. आई वांट द नेम्स ऑफ दोस कैडेट्स नॉट इन द फॉलोइंग. ऐसे ने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टाइम पास किया. हाँ यस सर अभी देता हूँ, अभी जस्ट ढूंढता हूँ, अभी ऐसे करता हूँ ऐसे. ही वाज फ्रॉम सैनिक स्कूल. ठीक है. तो उसके बाद लेक्चर खत्म हो गया. तो वो जो सीनियर था ना, उसको ही रिमेम्बर्ड कि यार ये 2 बंदे नहीं थे इनके, मुझे नाम इसने अभी तक दिए नहीं. सो ही आस्क्ड इन द इवनिंग आल्सो, मुझे उनके नाम चाहिए. ऐसे यस सर आई गिव. पूरा दिन निकल गया. नेक्स्ट डे हमारे क्लासेस थे जूनियर्स के, तो बीच में ब्रेक था. तो दैट सीनियर अगेन केम बैक एंड ही आस्क्ड द एसईओ, तूने अभी तक मेरे को नाम नहीं दिया, मुर्गा बन जा गया ना, स्टार्ट रोलिंग एंड ये वो. उसको बहुत टॉर्चर करना शुरू किया. उसने सारा टॉर्चर सा, फिर हमारे पूरे कोर्स को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया उसने. बट इवनिंग तक आई एम टेलिंग यू, हमारे एसईओ ने ना, मतलब उसको घुटने पे क्रॉलिंग करवाया, सब करवाया, बट उस बंदे ने नाम नहीं बताया.
ठीक है. And I'm telling you the one more, मतलब at the end of this, at the end of the day, उस सीनियर ने आके पूरे हमारे कोर्स को बताया कि see this is the spirit, this is called a coursemate. ठीक है. इस बंदे को मैं पूरा एक दिन सताता रहा कि मुझे इनके नाम चाहिए, ठीक है, बट इसने नहीं बताया. So that kind of bonding coursemate you want when you go in the battle. And सब इसके लिए ताली बजाओ. मतलब वो सीनियर को भी पता था, he knew that. ठीक है. तो इसने अप्रिशिएट किया इस क्वालिटी को कि अगर मान लो कल जाके टच खुदा ना खास्ता अगर इसको एनिमी ने पकड़ लिया और पीडब्ल्यू बना लिया, ये कभी आपके पोस्ट के लोकेशंस आपका नाम नहीं बताएगा. ओके, ये मर जाएगा लेकिन ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड अ ट्रू इंडियन आर्मी ऑफिसर. ओके, सो ऐसा बंदा चाहिए. सो दिस वाज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन ऑफ अस, यू नो. So these are some incidents. I mean, there are so many incidents, but ये मुझे हमेशा याद रहेगा. Got it. Sir, OTA में which arm did you choose for before you moved out, and which regiment did you join, and what was your motivation to join that? Yeah, of course. वो काफी confusion चल रहा था between infantry, para, RT. I volunteered for parachute regiment, but मुझे artillery में commission मिला. But again, every arm is an equal arm. But वो हमेशा एक था कि नहीं यार, I wanted to become a part of a special force. And again, I told you ना कि that childhood dream में not only to join the army, एक बार मैंने रिपब्लिक डे परेड में ब्लैक कैट कमांडोज को भी देखा था. अच्छा. तो तब से मैं आई आस्क्ड माय फादर कि ये ब्लैक कैट क्यों बोलते हैं इनको, ये क्या होता है. माय फादर सेड यार ये बहुत बड़े लोग होते हैं, ऐसे ऐसे, ये स्पेशली ट्रेन कमांडोज होते हैं. ओके, इट वाज समथिंग इन अराउंड 97 98 की बात. एंड दैट टाइम तो मुझे ऐसा लगा यार क्या मैं ऐसे मतलब बन सकता हूँ या नहीं, मतलब एक ऐसा जस्ट थॉट आया था मेरे में. एंड I got commissioned into artillery. I don't say casualty, but okay, fine. I mean, I volunteered for it. हमारे टाइम पे थोड़े वैकेंसीज भी कम थे. And but वो हमेशा एक चीज रही थी कि नहीं यार, I wanted to serve. And then finally, after putting 6 years of service में, I got a opportunity to volunteer and to join the National Security Guard, Black Cat Commando. Okay. So if you could speak about, how was the process like in the NSG, the selection process? You call it the probation also. So how was that process for you? And what qualities are they looking at that probation time? Because they've already looked for some qualities during your SSB part. So what are they looking for now? Yeah. Okay. So now I'll tell you, NSG is a specialized counterterrorism force. Now everybody knows about it after 26/11. So I can tell you that energy is like it was a lot of transformation happened after 26/11. So there are so many other units have formed in Mumbai, Chennai, Hyderabad. Completely. So I was part of Mumbai. Yeah. So जब आप volunteer करते हो उस चीज को, basically जो भी special force होता है, it's a volunteer force. So nothing is stronger than volunteer's heart, जो बोलता है. So first you have to volunteer. And I'm telling you, energy का ना थोड़ा सा probation is difficult या different बोल सकता हूँ मैं. It's very special for any officer because NH में generally 6 to 10 years के सर्विस के ब्रैकेट में आते हैं लोग. Like para and all, उसमें क्या होता है ना, immediately commission होने के बाद you can go for it within 6 months of service or maximum 1 or 2 years of service. जो already you are young and you are उतना fitness भी रहता है. But after putting 6-7 years of service, 8 years of service, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो फिटनेस लेवल रहता नहीं. आपकी शादी हो जाती है, यू हैव अ चाइल्ड, एंड फिर वो एक जैसे होता है ना, एक नॉर्मल आपका डिफरेंट लाइफस्टाइल बन जाता है. एंड देन यू आर ऑफिसरिंग कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर, एडजुटेंट करते हो आप, तो यू आर मतलब आप उस चेयर पे बैठते हो जहाँ पे आपको आदत लग जाती है टू ऑर्डर देना पूरी रेजिमेंट को, फॉलिंग लेना, जवान, जीएसटीओ, ऑफिसर्स, आपके काफी सारे जूनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं. ये सब माहौल होने के बाद जनरली मतलब ये जो ब्रैकेट होता है 6 to 10 years ऑफ सर्विस में, ऑफिसर्स का एक करियर ब्रैकेट होता है जिसमें काफी सारे उनके स्पेशल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं कुछ 2 साल के, जिससे ए पीरियड बोलते हैं. एंड देन स्टाफ सिलेक्शंस के कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं.
इस दौरान में वॉलंटियर करना जनरली बेवकूफी मानी जाती है। आई वाज टोल्ड कि यू आर एन इडियट, व्हाई यू वांट टू जॉइन नाउ एनर्जी, मतलब यू आर मैरिड, यू गॉट अ किड एंड अब सब कुछ तो ठीक ठाक है। बेसिकली आई टेल यू, माय राइट शोल्डर गॉट, आई गॉट एन इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी 2016 में। तो वो मेरा राइट शोल्डर ऑपरेट हुआ था, उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ था एंड सो आई कुड नॉट मूव माय हैंड, लाइक मतलब इतने ऊपर भी मैं मूवमेंट नहीं कर पाता था। Okay. बट वो मैडनेस हमेशा एक रहता है ना स्पेशल फोर्स का, कि जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ मतलब 2-3 दिन के बाद ना वो ड्रेसिंग चेंज कर रहा था माय डॉग, एंड आई आस्क्ड हिम कि डॉग मुझे कितना टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में? ही अरे डोंट वरी यार, चिल, इसको तो अभी 1-2 साल लग जाएंगे, सो डोंट वरी, आई विल पुट इन द कैटेगरी। मतलब नहीं नहीं, आई वांटेड टू बिकम एन एनर्जी कमांडो, एंड इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग टू आस्क इन अ हॉस्पिटल, इवन यू वर नॉट डिस्चार्ज, तुम्हारा अभी ड्रेसिंग नहीं निकला है, तुम मतलब हाथ भी इतना नहीं उठा पा रहे हो, बट यू सेड, यू आस्क्ड द डॉक्टर कि क्या 1 साल के अंदर मैं रोप चढ़ पाऊंगा? सो माय वाइफ वाज आल्सो देयर, सो बट वही होता है ना यार कि विलिंगनेस, आई टोल्ड यू ना। सो इसके बावजूद भी विद इन 1.5 years में आई कुड कंप्लीट द प्रोबेशन, एंड बेसिकली एनर्जी इज मोर अबाउट द अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि आपका टास्क वैसे होता है ना, बिल्डिंग इंटरवेंशंस करना, काफी सारे रूम इंटरवेंशन के टास्क होते हैं, सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर अपर बॉडी देन द एंड्योरेंस। आई मीन पैरा प्रोबेशंस में एंड्योरेंस पे ज्यादा फोकस होता है, इस पर्टिकुलर टास्क वैसे होते हैं बिकॉज दे गो अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड दे कैरी लॉट ऑफ एंड्योरेंस टास्क। सो प्रोबेशन ऑफ कोर्स इट्स अगेन काफी सारे चीजें होती है विच ब्रेक्स योर एंटिसिपेशन। ओके, जब भी आप सोचते हो कि अभी ये खत्म हो गया तो नया कुछ शुरू हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड अ कमांडो मेंटालिटी। आई मीन एनर्जी, इट्स कॉल्ड प्रोबेशन को उसको बोलते हैं कन्वर्जन, कमांडो कन्वर्जन कोर्स, दे मेक यू कमांडो आउट ऑफ सोल्जर। सो कमांडो का वो माइंडसेट होता है ना कि यू जस्ट कैन नॉट, जो बोलते हैं ना कि डिटर्मिनेशन कैन नॉट गिव अप, गिव अप नहीं करना मतलब क्या है? इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल, इट्स अबाउट द माइंड। कि मतलब द मोमेंट यू थिंक कि चलो अभी तो खत्म हो गया, मैंने 4 टेररिस्ट को मार दिया, अभी तो ऑपरेशन खत्म है, दिन चढ़ गया है ना, सारी गाड़ियां आ चुकी है, अभी रेस्क्यू शुरू हो चुका है, रिट्रीट हो चुका है, नो, एंड तभी जाके कुछ समथिंग अनएक्सपेक्टेड हो जाए, एंड स्टिल यू हैव टू पुट ऑन योर गियर्स एंड यू हैव टू गेट एंगेज इनटू एन ऑपरेशन अगेन। ठीक है, अब ये इसमें वही डिफरेंस होता है नॉर्मल सोल्जर या कमांडो, कि उसको कभी वो फटीक नहीं लगता, कि एक जो बैटल फटीक होता है, यू कैन नॉट हैव दैट बैटल फटीक, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन बैटल फटीक, दैट इज व्हाट मेक्स द प्रोबेशन। ये आपको हमेशा वो पिक ऑफ करता जाएगा, आपके हमेशा माइंड्स को वो ब्रेक करता जाएगा बार बार, कि जो जो इंप्रेशंस आपने लाए ना कि ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए, ऑपरेशन ऐसे किए जाते हैं, चीजें ऐसी होती है, मेरा बॉडी का लिमिट इतना ही है, ठीक है, बॉडी हैज अ लिमिट, माइंड डजंट हैव अ लिमिट। ओके, बॉडी हैज अ लिमिट बट आपके माइंड इज अ लिमिटलेस। ओके, सो दैट इज व्हाट कमांडो इज। सो प्रोबेशन में आई टेल यू, जब माय शोल्डर गॉट ऑपरेटेड 1.5 years back, and I was very weak in physicals also as it is. I was not so Superman बिल्कुल तो नहीं था मैं. I was a very average cadet in the academy. I was very average in the unit also. But काफी common अफसर था मैं. But dreams काफी uncommon थे to become an energy commander. Okay. So जब मैं इनिशियल में गया था तो वहाँ पे टेस्ट होती है, बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स होता है, एंड एनर्जी का काफी टफ कोर्स होता है. देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स हैं 26 फीट वॉल एंड ऑल, काफी क्लाइंबिंग एंड अपर बॉडी का काफी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. सो एक 26 ऑब्स्टेकल का एक कोर्स होता है जिसको आपको मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना हो. सो जब इनिशियल टेस्ट हुआ ना तो मेरा टाइमिंग आया था 32 मिनट समथिंग. ओके, एंड आई कुड नॉट पास. देयर आर फ्यू ऑब्स्टेकल जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, कंप्लीट ही नहीं कर पाया. सो अगर आप सिंगल ऑब्स्टेकल भी नहीं कर पाते हो तो यू आर फेल्ड एंड योर एंटायर प्रोबेशन कैन बी फेल्ड. बट वहां पे क्या है कि प्रोग्रेसिव जाते हो आप तो आपको फाइनल टेस्ट में सारे चीजें कंप्लीट करनी है, आपको उतना टाइम भी दिया जाता है. सो जब इनिशियल टेस्ट हुआ था तो आई वाज द लास्ट पर्सन टू कंप्लीट इन द बीपीटी, पूरे उस कोर्स में, प्रोबेशन में. तो जवान जैसे सारे जो मेरी टीम के ना टीम्स होती थी, अल्फा ब्रावो, आई वाज इन अल्फा. सो हमेशा बोलते थे साहब बहुत मुश्किल है आपका, तो इतना तो ऐसे तो होगा नहीं, यू नो. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू,
कि जब भी पीटी होती थी ना, तो नॉर्मल पीटी शूज में पीटी होती थी, क्योंकि काफी हेवी एग्जॉस्टिव होता था पीटी पीरियड। हम्म, आई यूज्ड टू वेयर अ वेरी हेवी जनरल शूज, जिसके सोल काफी भारी हो ना, वो पहन के जाता था। मुझे 2-3 बार टोका भी था कि ये पीटी में तुम इतने शूज क्यों पहन के जा रहे हो, इंजरीज होगी वो। बट आई वांटेड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, यू नो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सबसे वीक हूँ, तो मुझे कुछ समथिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए। तो जो फर्स्ट वीक में टेस्ट हुआ था, जिसको मुझे 32 मिनट लगे थे, एंड इवन आफ्टर फेलिंग फ्यू ऑब्स्टेकल्स, विद इन 8 वीक्स के टाइम में जब मैंने ऑब्स्टेकल वो कंप्लीट किया, तो आई कुड कंप्लीट इन 14 मिनट्स, okay. फ्रॉम 32 मिनट्स टू 14 मिनट्स। द पासिंग टाइम वाज 18 मिनट्स समथिंग। So it was a super excellent enclosure, and so entire team members was, you know, they were into a celebration कि साहब आपने कैसे कर पाया, मतलब they could see the transformation in me, you know. So willingness हमेशा होना चाहिए. So any probation you take, whether it is para, energy or anything, I've served with you know, joint exercise में हमने काफी की थी अलग अलग मार्कोस वगैरह के साथ. तो I'll tell you one more thing that special forces is a mindset. मतलब mindset मतलब क्या है कि आपका विलिंगनेस वहां पे टेस्ट किया जाता है, हाउ बैडली यू वांट इट। आई टेल यू, जो ऑब्स्टेकल्स वहां पे होंगे, जो इंस्ट्रक्टर्स आपको परेशान करेगा, परेशान मतलब क्या है कि यू जस्ट ब्रेक योर माइंड एवरी टाइम कि हाउ बैडली यू वांट इट। तो आई टेल यू, प्रोबेशन का एक मजेदार किस्सा ना, वहां पे इंस्ट्रक्टर होता था, लाइक आई ज्वाइंड एनर्जी आफ्टर माय जूनियर कमांड कोर्स, एंड जूनियर कमांड वाज इन माउ, आर्मी कोर वॉर कॉलेज में होता है, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहाँ पे जूनियर मोस्ट जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो एक कर्नल साहब होते हैं, जिन्होंने एक यूनिट कमांड कर चुकी है, यू नो, वेरी सीनियर गाय। इतना सीनियर ऑफिसर, सबसे जूनियर मोस्ट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहां पे। उस कोर्स में यू नो, वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद 27 जनवरी को मैंने जेसी खत्म किया, एंड 20 जनवरी आई ज्वाइन द एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर मानेसर, एंड वहां पे सीनियर मोस्ट इंस्ट्रक्टर मेरा कोर्समेट होता है, ठीक है। तो आई एम कमिंग फ्रॉम आर्मी वॉर कॉलेज डायरेक्टली टू द एनर्जी मानेसर, जहाँ पे मतलब पैरास के एनसीओज वगैरह रहते थे, एंड दे यूज्ड टू, यू नो, कम ऑन साहब, स्टार्ट रोलिंग, एंड इट्स अ फैंटास्टिक प्रोबेशन, आई एम टेलिंग यू। यू ट्रेन विथ योर बॉयज, जेसीओज, रैंक निकाली जाती है बेसिकली वहां पे, मतलब एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी इज अ कमांडो, है ना। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रैंक्स। तो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि एनर्जी का थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली बिकॉज आफ्टर सर्विंग 6 to 7 years ऑफ सर्विस इन द यूनिट, कुछ ऑफिसर्स तो 10 साल के बाद आए थे, ऑलमोस्ट कमांडिंग बैटरी और कंपनी लेवल, यू नो, या फिर एडजुटेंट, कभी कभी ऑफिसरिंग ट्वाइस ही करते हो आप, उसके बावजूद आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो कि आपको एनसीओ साहब बोलेगा, उस्ताद बोलेगा कि चलो साहब रोलिंग करो, 100 पुशअप लगाओ, यू नो। तो आई रिमेम्बर वन ऑफ एक 4 पैरा एसएफ के उस्ताद थे हमारे, बोलते थे कि साहब जब तक एक दम में 100 पुशअप नहीं लगाओगे ना, आपको काली डांगरी पहननी है। ब्लैक कैट कमांडोज का जो यूनिफॉर्म होता है ना, तो यूज्ड टू टेल मी, आपको काली डांगरी पहननी है, जब तक 100 पुशअप नहीं लगाओगे ना एक दम में, आपको काला कच्चा नहीं पहनने दूंगा मैं। so yeah, so that's level of you know, मेरे लिए वो ये था कि जस्ट जेसी से निकले एंड देन एनर्जी प्रोबेशन में था, and throughout the energy tenure was fantastic. Lot of joint exercises I've done, and काफी mock exercises की थी across the India. So fantastic experience, fantastic experience. Sir, I'll come to the part of experience in the NSG. Like if you have any memories from the training, because I'm not sure if NSG was involved in any operation during that tenure. Any memories that you have cross training with any other forces or anything else which you would like to share? Yeah. I mean, it was a very fruitful tenure in NSG. See, there was a competition called Best House Information Team. Okay. And वो कंपटीशन में हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। आई मीन उसमें क्या है कि लाइक एनर्जी में भी काफी सारे यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स है, तो दे कम टुगेदर, दे कम्पीट विद ईच अदर, एंड सो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा वो था कि वी वॉन दैट कंपटीशन। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपटीशन इन द एनर्जी, बेस्ट हिट कंपटीशन। वो एक एक्सपीरियंस था। देन देयर इज अ वेरी फैंटास्टिक फायरिंग रेंज इन द मुंबई एनर्जी ड्यूरिंग माय टाइम, इट वाज गॉट इनॉग्रेटेड, state of the art firing range,
जिसमें काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बैट शूटिंग स्किल्स हमने डेवलप किए। फिर जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी डिफरेंट स्टेट फोर्सेस के साथ, यू नो। एंड जैसे मतलब बीइंग इन मुंबई, तो जैसे हाई रिस्क काफी सारी बिल्डिंग्स होती थी, आरबीआई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर स्लिदरिंग करना, बॉम्बे हाई पे स्लिदरिंग करना, आई मीन फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। Okay. सो lot of high tech equipments. I mean, I can't say equipments, gadgets NAG के पास है, very advanced gadgets are there. I can't name many of them, but yes, so technical superiority भी काफी रहती है उसमें, तो काफी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस था वो। सर मैंने आपकी कुछ फोटोज देखी वेपन्स के साथ, तो आपका वैसे फेवरेट वेपन कौन सा था? Yeah. So see, being a gunner and being an energy commando, I fired almost from 9 mm to 155 mm. Okay, I was in Bofors unit. So, but the best or the favorite weapon मेरा हमेशा एक ही रहा है, which I can be completely reliable upon, is the mind. Okay, because ये वेपन ऐसा है ना कि इसका कैलिबर मैं खुद सेट कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना सेट कर सकता हूँ। इसका रेंज में जितना चाहे उतना सेट कर सकता हूँ। इसका रेट ऑफ फायर में हमेशा जो चाहूँ वो सेट कर सकता हूँ। एंड इट इज ऑलवेज विथ मी। मुझे जाके कहीं से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ये कभी खराब नहीं होगा। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, नॉट टू गेट बॉगल डाउन विथ लॉट ऑफ इम्प्रेशंस एंड ऑल, कि काफी सारे फिक्स्ड आपके बायसेस या प्रेजुडिसेस ना बन जाए। हमेशा ये फ्रेश रहे माइंड, हमेशा ये ओपन रहे, उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बट इट इज द मोस्ट रिलायबल वेपन इन एनी कॉम्बैट, दैट इज योर माइंड। बिकॉज इसका जो मजल वेलोसिटी है ना, ये किसी भी वेपन से ज्यादा है। So it is not the AK-47 or 6 or that you are using, or the snipers में PSG जैसा accurate weapon, मिनीमी जैसा very good supporting weapon आप यूज करते हो। वो जो आपके ट्रिगर पे जो उंगली होती है ना, उस उंगली के पीछे का जो माइंड होता है ना, वो सबसे शार्प और सबसे एक्यूरेट वेपन होता है। हमेशा उसके ऊपर रिलाय। गॉट इट। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि बिकॉज यू हैव सर्व फॉर अराउंड 10 years in the army, if I can ask you any 3 life lessons that you have learned from the armed forces which you still use or still cherish, what would they be? Any 3? Yeah, there are not only one, there are so many life lessons, you know. Of course I always say this, and मतलब I follow since my academy days. मेरे जो senior के रूम के बाहर लिखा था, what doesn't kill you makes you stronger, you know. So I've really experienced that. I mean, while serving in the Poonch sector, very highly active sector, काफी ceasefire violations होते थे वहाँ पे. So I मतलब 1.5 years में तो काफी ceasefire violation, cross borders, counter bombardment काफी किया है। एक तो काफी horrible एक्सपीरियंस था, एंड मतलब ऐसा इतना क्लोज था कि मतलब 50-100 मीटर्स के ऊपर मोटर्स के राउंड्स आ रहे थे। वी वर जस्ट इनसाइड द आवर माय बंकर, एंड लेफ्ट आउट राउंड्स आ रहे थे, एंड जस्ट आई थॉट कि मतलब पूरा जो बंकर था ना, वो पूरा पीडी हमारा शेक कर रहा था, पूरा हिल रहा था। एंड आई वाज लाइक कि यार अभी तो यहाँ पे मेरा टॉमसन लग जाएगा कि बस अभी कि लेट शहीद, बट फाइनली वी सर्वाइव दैट, आई मीन पाकिस्तान की तरफ से काफी हेवी बमबार्टमेंट शुरू हो गया था, एंड आई वाज विद द वेरी रेपुटेड एंड वेरी फाइटिंग फोर्स, वन ऑफ द नागा रेजिमेंट वाज देयर, वेरी fearless people, I'm telling you. जब हमने काउंटर बमबार्टमेंट शुरू किया तो थोड़ा सा दब गया, and so finally I could survive. I mean, a lot of incident happened during the Kashmir. So only one lesson that I've really experienced this, कि what doesn't kill you really makes you stronger. After that incident has really changed my life, यार। I mean, जो भी ईगोज, एरोगेंस या सेल्फ एस्टीम वगैरह जो होता था ना, कि मैं मेजर साहब हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब मिट गया। जो गोला गिरा था ना हमारे ऊपर, उसके अभी जो वो जो ये होता है ना, फिन्स होते हैं, वो अभी भी मेरे पास है। ऑलवेज कीप इट, आई कैन शेयर यू दैट फोटोज आल्सो, आई कीप इट इन माय रूम। वो हमेशा मुझे याद दिलाते हैं ना कि उसके साथ साथ सब कुछ, वो जब ब्लास्ट हुआ था ना हमारे पोस्ट के ऊपर, उसके साथ सब कुछ ब्लास्ट हो गया, कि मैं किस कम्युनिटी का हूँ, मैं क्या लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं कहाँ से पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है, मेरा क्या है, सब कुछ जो भी चलता है ना, कि हमारा मैं ऐसा हूँ, मैं इस बाप का बेटा हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं ऐसा हूँ,
मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, सब कुछ उस ब्लास्ट में खत्म हो चुका था, ठीक है। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज आई हैव लर्नड इज दैट you have a life, you're still alive. I can still breathe after that incident. My men could still breathe along with me. I'm in touch wood. I'm from a pure Sikh pattern. वाहेगुरु का हाथ था, किसी को कुछ हुआ नहीं, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। इसका मतलब एंड एवरीबडी वी वर ब्रीदिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग। दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्न इन माय लाइफ। इससे इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि यू आर स्टिल अलाइव, जो जनरली हम भूल जाते हैं। Okay, हम हमेशा हमारे बबल में ही रहते हैं, लॉट ऑफ बबल्स वी कैरी, कि अभी तो ऐसा ही है, वैसा ही है, ये है, वो है। इट इज ऑल जस्ट बबल्स होते हैं। वो जब ब्रेक हो जाता है ना, तो आपको पता चलता है कि यार आई एम अलाइव, आई एम स्टिल अलाइव। इट्स द मोस्ट greatest thing in your life. You're still breathing. Yeah, you start appreciating small things which you really do not care. Exactly. Everything now, everything. You become very inclusive after that. फिर तो कोई मतलब ये नहीं आता है कि ये कौन से इसका है, कौन से उसका है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, कुछ नहीं आता। इंसान है, मतलब वो इम्पोर्टेंस आ जाता है लाइफ का, एनी लाइफ फॉर दैट मैटर। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न। Got it, sir. Sir, क्योंकि आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि after that you have come out, what are the various opportunities that you have as an SSC officer? If you could picture that for us. Okay. See, lot of opportunities are there. Basically, I must suggest that कि मेरे reasons कुछ अलग थे to opt for the release. But मैं तो ये suggest करूँगा कि if you want to join an army, go for a permanent commission. I mean, even if you go for a short service commission, don't think about quitting after 10 years or 5 years. Be in the flow. There are a lot of things to learn to grow as a human being. Yes, you got an option. If you want to do something different, then you can take a decision. Otherwise, there are a lot of options available. Corporates ho, security industries ho, private securities ho. आपको मतलब there are you just name it, it is there. Because army officer is a complete enterprise. I mean, you take it administration, you take it human resource management, you take security administration, even the financial management you can take, anything, even some technical part also. I'm from a very non-tech background, but being in RT, there are a lot of things, lot of in few technical education also, in the courses also there are few syllabus which was very technical in nature that we have learned. And basically a leadership तो एक quality होती है, वो जो अपने आप ही आ जाती है. You can't help it. मुझे नहीं बनना है leader, तब भी आप बन जाते हो, तब भी आप में वो आ ही जाता है, वो एक initiative आ जाता है जनरली वो corporate life में, which is required, कि बहुत आसान लगने लगता है कोई भी काम. जब आप एक्सट्रीम को छूते हो तो फिर तो कोई भी जॉब आपके लिए बहुत आसान हो जाती है. There are a number of opportunities. You can take any opportunities. You will do what is needed. Got it. That is what the organization teaches you. So my final question to you is, because a lot of aspirants are watching this, so what will be your message to all of them who wants to join the forces? Yeah, you should join the force. This is the most advanced. This is the most I mean, you'll always feel grateful after joining the army. Yes. देखो क्या है ना कि ज्वाइन करने के बाद छोटे मोटे आपके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कभी फुलफिल नहीं कर सकते, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर नहीं सकता. ठीक है, आप खुद के भी कभी पूरे नहीं कर पाओगे. बट अगर आपको सीरियसली इसको मतलब आपको ज्वाइन करना है, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, व्हाट यू शुड हैव एन अनवेवरिंग कमिटमेंट. क्योंकि क्या होता है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आप शुरू कर देते हो प्रिपरेशन में, फिर बीच में कुछ आ जाएगा, आप उस तरफ निकल गए. ठीक है, फिर दोबारा कोई दूसरा चीज मिल गया, आप उसकी तरफ. सी आई टेल यू नेचर्स लॉ. जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में बच्चा होता है. जब तक वो 9 महीने पूरे नहीं होते वो बच्चा बाहर नहीं आएगा, है ना. तो अगर बीच बीच में उसने अबॉर्शन करना शुरू कर दिया और कोई दूसरा चीज में जाना शुरू कर दिया, तो शी विल नेवर डिलीवर एनीथिंग. तो वैसे ही है, यू कैन नेवर डिलीवर एनीथिंग.
आपने कंसीव तो कर लिया है कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, एनीथिंग, एनी एम यू हैव, बट उसके लिए आपको उतना टाइम और उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे एक लेडी रखती है, जैसे आपकी माँ ने रखा था 9 महीने, वो काफी इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ पेशेंस यू रिक्वायर्ड, हाई लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन यू रिक्वायर्ड। वो काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, यू कैन आस्क योर मदर, इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू इट। तभी तो एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है ना, और वो मुस्कान आती है माँ के चेहरे पे। तो वही है, दिस इज द नेचर्स लॉ। अगर आपको कोई भी आपका सपना पूरा करना है, यू शुड हैव अ कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट। हाँ, उसके लिए जो चीज करना चाहे आप करो। आई वांट टू शेयर वन थिंग अबाउट माय लाइफ। 2008 में 26/11 अटैक हुआ था। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, मैं पुणे में था। मैंने पहली बार टीवी पे देखा तो एक नॉर्मल न्यूज आ रही थी कि कुछ सरफिरे ने गोलीबारी की है मुंबई में। फिर 1 घंटे के बाद आया कि गैंग वॉर हुआ है। फिर रात को मुझे कॉल आया मेरे अंकल का कि यार जो पुलिस कमिश्नर है अशोक कामटे इज नो मोर। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज, आई नो हिम, आई मेट हिम बिफोर। मैंने टीवी न्यूज देखा तो पता चला कि ताज पे, नरीमन हाउस में एंड देन ट्राइडेंट में टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया है। तो आई केप्ट ऑन वाचिंग द न्यूज एंड आई देन सॉ इमीडिएटली नेक्स्ट डे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन मार्टियर हुए थे उसमें। एंड आई वाज वेरी टच्ड, आई वाज वेरी मूव्ड बाय दैट इंसिडेंट। एंड बचपन में एक सपना था ब्लैक कैट कमांडोज का, बट जब मैंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को देखा तो नेक्स्ट अगले 1-2 हफ्ते तक ना एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम। कोई कैंडल जला रहा था, कोई मार्च कर रहा था, कोई इंटरव्यूज दे रहे थे, कोई मैसेजेस डाल रहे थे, कोई लेटर्स लिख रहे थे। मैंने एक चीज डिसाइड की, आई वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू मेजर संदीप कृष्ण बाय वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म। एंड आकाश, विद इन 10 years, in 2018 I became an energy commando with the same uniform, with the same rank, with the same AOR. एंड इंडियन एक्सप्रेस का एक इवेंट होता है स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ करके एवरी ईयर 26/11 को। तो संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स वहां पे आए थे, सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम। दे ऑलवेज कम टू मुंबई एनर्जी लोकेशन एंड सो आई मेट द पेरेंट्स एंड सो जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की मदर थी वाज वेरी टच्ड। एंड जब उनको मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गया था, सो ही जस्ट हग मी एंड ही सेड ऑल द बेस्ट। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि जो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को ट्रिब्यूट देना है बाय वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म, एंड आई डिड इट। इट टुक मी 10 years। एक ही चीज थी, बीच में मेरा काफी सारी चीजें आई, काफी सारा डिफिकल्टीज आई, काफी सारे देयर वर पीपल हु यूज्ड टू टेल मी दैट यू शुड नॉट, यू आर नॉट फिट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। इन कॉलेज डेज आल्सो मेनी ऑफ माय seniors and teachers, a lot of people who said that you don't deserve to become an officer. ठीक है। Even in the army also, many of my seniors told me that यार energy तेरे बस की बात नहीं है, you can't, you should not go for energy, तू fail होके आ जाए। But I love to disappoint people and I always disappointed them. But uh, this is the real story that I wanted to share with everyone. So have a commitment and you will achieve anything that you want. Got it, sir. Sir, thanks a lot, sir, for your time on this session. It was really interesting to know your story, your perspective about from SSB to your life in army to NSG, and I hope a lot of people who will be hearing it will be really get a lot of perspective about how to approach a lot of things in life. So thanks a lot, sir, again for your time on this session. Jai Hind, sir. Thank you so much. Thank you so much, Akash. Thank you so much. Thank you, sir.